हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ एम फॉस्टर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एम फॉस्टर का फुल नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर था। ये सक्सेसफुल नॉवलिस्ट थे, लिबरल ह्यूमनिस्ट थे, ब्रॉडकास्टर थे, एसेइस्ट थे, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही राइट्स नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, आल्सो वर्क इन रेडियो प्रोग्राम्स। ये 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं। 1879 लंदन इंग्लैंड में ये पैदा हुए। ही वॉज ओनली चाइल्ड इन हिज फैमिली। हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 1 years ओल्ड। इनके फादर आर्किटेक्ट थे और उनका नाम एडवर्ड मॉर्गन लेल्विन फॉस्टर था। इनकी मदर का नाम एलिस क्लारा था। इनकी परवरिश इनकी माँ ने, इनकी ग्रैंड मदर ने और इनकी फूफो ने की, और वो अपने विल के अंदर 8,000 pound फॉस्टर के लिए छोड़ कर गई। दिस लार्ज अमाउंट हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन एंड हिज अर्ली ट्रेवल्स. Early in the 19th century, it also enabled him to live independently while he established his career as a writer. He attended an Eastbourne preparatory school and then family moved to Kent so that he could attend Tonbridge School. Tonbridge School, a traditional English public school था. Later he studied classics, philosophy, literature and history at King's College, Cambridge. In 1879, at King's College, Cambridge, he became a member of Cambridge Apostles. After graduation, Foster traveled in Italy and Greece. These experiences further broadened his outlook and he decided to become a writer. In 1901, he traveled Europe with his mother and started writing seriously. In 1902, he became an instructor at London's Working Men's College and remained with them for 2 decades. यानी कि ये टीचर भी रह चुके हैं. In 1906, he met an Indian student named Masood. The two developed a close friendship and Foster became curious about India. In 1907, E. M. Foster joins the Bloomsbury Group as a member and became a friend of Virginia Woolf and Leonard Woolf. In 1912, he visited India and started writing A Passage to India. कहा जाता है जो पैसेज टू इंडिया इनका नावल है उसके अंदर उन्होंने सारी वो बातें लिखी हैं जो इन्होंने इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस की. नेक्स्ट वीडियो हमारी पैसेज टू इंडिया के ऊपर ही होगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. In 1915, he worked voluntarily for the Red Cross in Egypt. In 1919, he came back to England. In 1921, he visited India second time and disheartened by his criticism to his homosexual content. क्योंकि ये होमोसेक्सुअल थे और कहा जाता है जो इंडियन फ्रेंड इनके थे मसूद, उनके साथ भी इनकी क्लोज फ्रेंडशिप को होमोसेक्सुअल वाला ही एलिमेंट बीच में कंसिडर किया जाता है. अब उसके होमोसेक्सुअल कंटेंट के ऊपर ही उन्होंने राइटिंग छोड़ने का फ़ैसला किया क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था. जब ये इंडिया से वापस आए थे, पहले जब ये इंडिया गए तो इन्होंने पैसेज टू इंडिया लिखना शुरू किया था. वहाँ इन्होंने 7 चैप्टर्स लिखे थे, लेकिन वहाँ से जब ये वापस आए तो इन्होंने होमोसेक्सुअल कंटेंट के ऊपर एक नावल लिखा जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में उसको पब्लिश नहीं किया था इसी क्रिटिसिज्म की वजह से. इन 1927 ही वॉज इलेक्टेड एज ए फेलो ऑफ किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज. In 1934, he became the first president of the National Council for Civil Liberties in England. इनका मेन मोटिव ह्यूमन नेचर को स्टडी करना था. ये बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर थे और ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे. ठीक है. He was most honest and depicts true picture of the people. Friendship is most important thing in his writing. He was trying to find possibility of good relations. A controversy about his quote, personal friendship is more important than national duties. यहाँ national duties क्या हैं, national discourse, और वो national discourse क्या है, to civilize people. He was concerned about his personal and private life. He believed that the main facts in human life are 5: birth, food, sleep, love and death. He says that what is wonderful about great literature is that it transforms the man who reads it towards the condition of the man who wrote. यानी कि लिटरेचर क्या होता है कि जो बंदा लिटरेचर पढ़ रहा है वो उस बंदे की फीलिंग को इमेजिन कर सके, नोट कर सके, ऑब्ज़र्व कर सके जो उस बंदे ने वो राइटिंग लिखी है, वो लिटरेचर लिखा है. ठीक है. अब वो लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई नावल हो, शॉर्ट स्टोरी हो. ठीक है. ये एक वंडरफुल लिटरेचर की खूबी है. ठीक है. ही वॉज ए पर्सन हु बिलीव्स इन compassion above all kinds of barriers.
his purpose to bring people close to each other. He declared himself a professor of nature. नेचर यहाँ पर ह्यूमन नेचर और ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो वाली नेचर नहीं जो वर्ड्सवर्थ के हम लोग रोमांटिक साइड पे देखे जाते हैं, ठीक है। इन 1945 हिज मदर डाइड. He was elected an honorary fellow at King's College, Cambridge. In 1947, he visited the United States to deliver his lectures. जो इनका है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, वो लेक्चर्स है इनके, ठीक है। On 1st January 1953, Forster is awarded with the Order of Companion of Honor. In 1969, he was awarded with the Order of Merit. In 1970, Forster died of several health issues in Coventry, England. यहाँ से पता चलता है हम लोगों को कि इनकी एज 91 थी। ऑलमोस्ट इन्होंने सेंचुरी क्रॉस कर लेनी थी। He never married because of his homosexuality. He was a writer of sensitivity and insight. His work explored what it means to be human through inheritance and intimacy, betrayal and the golden threads of kinship. इनकी राइटिंग ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूमती थी, ठीक है। हिज सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन नेचर। थीम्स अगर हम देखें इनकी राइटिंग के अंदर तो हमें रेसिज्म दिखता है, रेस एंड कल्चर दिखता है, ह्यूमैनिटी दिखती है, फ्रेंडशिप दिखती है, आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी दिखता है, होमोसेक्सुअलिटी दिखती है, इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक वे ऑफ लाइफ। जो ये गए थे विज़िट के लिए उधर उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और ये उनकी थीम्स के अंदर में दिखता है। सोशल इंटरेक्शन दिखती है, कॉलोनियलिज्म की थीम दिखती है, कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड वुमेन एंड देयर प्लेस इन सोसाइटी ये दिखता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल एंड कन्वेंशन एंड पैशन दिखता है, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड रिप्रेस्ड फैंटेसी दिखती है, मिस्टिसिज्म दिखता है, रिच वर्सेस पुअर, ये सारी थीम्स हम लोगों को इनकी राइटिंग में दिखती है, ठीक है। राइटिंग स्टाइल अगर इनका देखा जाए, ही बिलोंग टू टू इरास, लाइक लेट विक्टोरियन एंड द अर्ली मॉडर्न। तो थर्ड पर्सन नरेशन इन्होंने यूज़ की एंड रिलाइड ऑन अ लॉट ऑफ डायलॉग टू डेवलप द स्टोरी लाइन्स, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इवेंट फॉलो वन एंड द इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कोई इलॉजिकल चीज़ इन्होंने यूज़ नहीं की, लॉजिकल वे के अंदर ये लिखते थे और सेंटेंस जो उनके इवेंट्स जो ऐसे होते थे वो एक दूसरे को फॉलो कर रहा होता था, ठीक है। Circumstances in the 20th century made the core of his writing. He writes in the genre of symbolism, modernism, mysticism and realism. इस genre के अंदर ये सारे इज़म पाए जाते थे और ये चीज़ें इनकी राइटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड एंड पोइटिक टोन थी इनकी राइटिंग के अंदर, यूज़ ऑफ आयरनी करते थे, नरेटिव पैटर्न कंसाइज एंड फ्लुएंट, ठीक है। ही डीपली ऑब्जर्व द मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी. There are humanistic open-mindedness elements in his writing and are well discussed in his writing. What I believe. Colloquial style of writing था इनका। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।